or the Jeweller's Block insurance policy. After that, let us understand what are things which are not covered and we have to be cautious about. Number 3, we can understand the claim processes. So in case if there is an unfortunate claim, how do we handle that, and what documents would the insurance company need at the time of losses. Number 4, the most important thing, which is the insurance and security during the lockdown. So do's and don'ts which we should know in this lockdown, and of course few things which we can do after the lockdown gets over. And of course at the end I'll again explain you a few other things which we do. So we'll directly start on with the insurance policy. Guys, we are mediators, and we deal with ICICI Lombard, Bajaj Allianz, Oriental Insurance Company, and we sell their insurance policy. We are one of the largest mediators for all these 3 companies. The reason behind this is we specialize in jewelry insurance, and that's the reason why the insurance company give us a modified Jeweller's Block policy, which is not there with many of the other mediators. We have an MOU with all these companies, and there are few things which we have binded our insurance company to give us specially, which we have also shared it with GJC and IBJA. Okay, so guys, okay, so we'll now understand what is the Jeweller's Block policy. Friends, Jeweller's Block policy is basically a combination of few insurance policies, like the fire insurance policy, the burglary insurance policy, the marine insurance policy. So all the other businesses take different policies, like fire, burglary, marine, transit, but we have combined all these insurances into one combo policy, which is called the Jeweller's Block policy. In this insurance policy, there are sections, and I'll just quickly run through the sections because I understand many of us would be knowing about it, and all those people who are our clients, I'm sure our marketing team has already explained you about things. I'll just brief up about these things. So section 1 is basically stock in your office. So all the stock which is there in your premises. So what are the coverages? The coverages are fire, burglary and theft. So if दिन में रात को अगर आपकी दुकान में कोई चोरी हो जाती है, या आप दुकान में बैठे हो एंड आपके दुकान के अंदर कोई आ जाता है और गन पॉइंट पे रॉबरी कर लेता है, तो ऑल दीज थिंग्स जो दुकान के अंदर की रिस्क है कम्स इन सेक्शन 1. इसके अंदर जरूरी चीज ये है कि आप जब भी इंश्योरेंस कराते हो तो आपको आपकी पूरी वैल्यू का इंश्योरेंस कराना है. आप अगर आपका स्टॉक 10 करोड़ का है तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट आप पूरे के पूरे वैल्यू का इंश्योरेंस कराएं. अगर आपने 5 करोड़ का इंश्योरेंस कराया है जबकि आपकी दुकान में स्टॉक और पेपर पे स्टॉक 10 करोड़ का है, एंड इफ टुमारो आप दुकान में बैठे हो, कोई अंदर आ जाता है और 5 ट्रे ऊपर पड़ी है, उस ट्रे को लेकर वो आपकी दुकान से भाग जाता है और आपका 1 करोड़ का नुकसान हो जाता है, तो उस समय ये सिचुएशन होती है इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर के पास कि आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो है 5 करोड़ का, आपका जो बुक्स में और टोटल स्टॉक दुकान में है वो है 10 करोड़ का, और आपका जो लॉस हुआ है वो है 1 करोड़ का. तो इसका ये मतलब है कि आपका अंडर इंश्योरेंस हुआ है. तो इंश्योरेंस कंपनी देखेगी कि आपका इंश्योरेंस परसेंटेज कितना है. तो आपका इंश्योरेंस परसेंटेज इज 50%. आपने खाली अपने टोटल स्टॉक का 50% का बीमा कराया है, तो आपका जो 1 करोड़ का जो क्लेम है वो घटकर आपको सिर्फ 50 लाख मिलेगा. तो दैट इज कॉल्ड अंडर इंश्योरेंस क्लॉज. तो आपका जितना भी स्टॉक है एज वेल एज गोल्ड के भाव जो बढ़ गए हैं उसको भी कैलकुलेट करके अगर आपका स्टॉक कम का किया हुआ इंश्योरेंस है तो आप प्लीज उसे बढ़ाएं. ऑफ कोर्स इसके अंदर 2-3 चीजें और कवर्ड नहीं है, जैसे कि अगर आप दुकान में हो और कोई गन पॉइंट रॉबरी होती है तो डेफिनेटली कवर्ड है, बट रात को अगर कोई रॉबरी हो जाती है और पता चलता है कि ये रॉबरी जो हुई है वो डुप्लीकेट चाबी से हुई है, मतलब किसी के पास आपकी दुकान की चाबी है, उस बंदे ने स्मार्टली आपके शटर खोले, अंदर घुसा, उसके पास आपकी तिजोरी की भी चाबी है और उसने तिजोरी खोलकर पूरी तिजोरी साफ कर ली, तो ये चीज आपकी पॉलिसी में या कोई भी ज्वेलर्स ब्लॉक इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होती है. इसका कारण ये है कि इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि ये चोरी नहीं है, ये फिडेलिटी है या डिसऑनेस्टी है. आपका ही कोई ऑफिस का स्टाफ जिसने आपकी चाबी का डुप्लीकेट चाबी बना दिया है या उसने आपकी चाबी चोरी करके
अब वो अंदर आकर आपके माल चोरी कर रहा है। तो अगर आपने अलग से फिडेलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो ये चीज फिडेलिटी के अंदर कवर होगी, ना कि आपके ज्वेलर्स ब्लॉक के सेक्शन 1 में। तो अगर आपके पास इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप प्लीज लिख सकते हैं, एंड वी विल डेफिनेटली टेक दोज क्वेश्चंस। जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 है फॉर ट्रांजिट। ट्रांजिट इज, सेक्शन 1 हो गया आपकी दुकान का रिस्क, और सेक्शन 2 हो गया दुकान के बाहर का रिस्क। तो दुकान के बाहर फ्रेंड्स, जब हम, आप या आपके ऑफिस का स्टाफ आपकी दुकान से कहीं पे भी बस में, ट्रेन में चल के ट्रेवल कर रहा है, और रास्ते में अगर कोई उसको पकड़कर चोरी कर लेता है या मार पीट कर उससे माल ले लेता है, तो ये सारी चीजें सेक्शन 2A में आती है। इस सेक्शन 2A के अंदर सारी चीजें कवर्ड है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कभी कवर किसी भी कंपनी में नहीं होती है, वो होता है नेग्लिजेंसी। अगर ट्रांजिट के अंदर आपके आदमी की मिस्टेक की वजह से चोरी हो गई, तो वो कवर नहीं होती है। काफी बार मिस्टेक्स कैसी होती है कि आदमी बॉम्बे से हैदराबाद जा रहा है, बीच में पूना फूड मॉल पे वो अपना बैग बस में रखकर नीचे उतर जाता है। अब बैग के पास में कोई भी नहीं है, ठीक है, तो उसको अनअटेंडेड गिना जाएगा। और उस वक्त अगर कोई बस में चढ़कर वो बैग चोरी करके चला जाता है, तो फ्रेंड्स वो आपकी पॉलिसी में कवर नहीं होता है, बिकॉज उसको नेग्लिजेंसी कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दीज नेग्लिजेंसीज, ट्रेवलिंग में काफी सारी चीजों को नेग्लिजेंसी में आ सकती है। तो जो जब भी कोई क्लेम होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी एक सर्वेयर अपॉइंट करता है। अब ये सर्वेयर का जॉब ये है देखना कि ये जो घटना हुई है, क्या इसमें कोई नेग्लिजेंसी है। अगर नेग्लिजेंसी है, तो उस पॉइंट के ऊपर वो आपसे जस्टिफिकेशन मांग सकता है। अगर ही इज नॉट सेटिस्फाइड विथ योर आंसर, देन ही मे रिजेक्ट द क्लेम। दिस इज द रीजन वाई ऑल ओवर इंडिया मोर देन 10,000 ज्वेलर्स, जिसमें से मोर देन 4,000 होलसेलर्स आर आवर क्लाइंट, बिकॉज ट्रांजिट के रिस्क काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और हमारे पास काफी सारे केस स्टडी है जिससे हम सर्वेयर को बता सकते हैं कि देखो इस ऐसे ऐसे पहले केसेस में भी ये घटना हुई है, एंड दिस इज पेएबल। बट ऑफ कोर्स आपको अपने स्टाफ को ट्रेन करना चाहिए एंड एक्सप्लेन देम कि किस तरह से उनको माल लेकर जाना है, और माल को कभी भी आपको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है। अगर आप ट्रेवल के अंदर यहाँ से दिल्ली गए और होटल में आप ठहर रहे हो, तो होटल के अंदर भी बैग रख कर आप नहीं जा सकते हो। बैग हमेशा आपके पास होना चाहिए। अगर आपने बैग कहीं पे रख दिया, अगर आपने बैग कहीं पे रख दिया और फिर चोरी हुई, दैट इज नॉट कवर्ड। इसके अंदर कौन कौन कवर्ड है? आप, आपका स्टाफ, अगर आपने किसी को पावर ऑफ अटर्नी दी है आपका माल ट्रेवल करने के लिए, तो ये सारे लोग आपका माल लेकर ट्रेवल कर सकते हैं। सेक्शन 2B, सेक्शन 2B इज स्टॉक विद कारीगर। जो भी आपके कारीगर है, अगर आपके कारीगर के पास स्टॉक, ये इमेज थोड़ा अलग है, बट जो कारीगर है, अगर आपके जो कारीगर है या ऐसे लोग जो आपके परमानेंट पेरोल पे नहीं है, जैसे कारीगर हो गए, हॉलमार्किंग सेंटर हो गया, ऐसे लोगों को जिनको आप अपना माल प्रोसेसिंग के लिए देते हो, जैसे डायमंड सर्टिफिकेशन सेंटर हो गए, तो इनको आप जब माल देते हो और उनके यहाँ पर अगर कोई चोरी हो जाती है, तो उसका भी आप कवर कर सकते हो। हर सेक्शन का आपको अलग अलग सम इंश्योर्ड देना है, और अलग अलग सम इंश्योर्ड के हिसाब से आपका ये होता है, राइट। मैं आपको एक जो ट्रेवलिंग का फॉर्मेट है, मैं आपको थोड़ी देर में शेयर कर लूंगा। और सेक्शन 3 इज बेसिकली लॉजिस्टिक्स। जो भी लॉजिस्टिक कंपनीज है, आंगड़ियाज है, जो आपका माल यहाँ से वहां पर ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनके लिए इंश्योरेंस कवर है। आप जितना अमाउंट इसमें लोगे, उतनी वैल्यू का पार्सल बीवीसी सीक्वल या कोई भी आंगड़िया से पूरे साल में कितनी भी बार भेज सकते हो। तो इसके अंदर जो है बेसिकली ऑल रिस्क कवर होता है। जब आपने माल लॉजिस्टिक कंपनी को दे दिया और उसके बाद में अगर लॉजिस्टिक कंपनी के हाथों से कोई चोरी हो जाता है, तो वो कवर्ड है। ऑफ कोर्स अगर लॉजिस्टिक कंपनी का आदमी खुद माल लेकर भाग जाता है, तो उसके लिए आपको थर्ड पार्टी फिडेलिटी का कवर एडिशनल लेना पड़ेगा। थर्ड पार्टी फिडेलिटी का कॉलम सेक्शन नीचे है, वो आएगा। सेक्शन 4 आपके दुकान के अंदर जो भी फर्नीचर फिक्चर्स है, आपका जो वेइंग स्केल है, आपके जो भी फर्नीचर फिक्चर्स है, फिटिंग्स है, ये सारी इसमें कवर्ड है सेक्शन 4 में। अगर कोई आग लग जाए तो आपको उसका क्लेम मिलता है। सेक्शन 5 है कैश इन ट्रांजिट। आप कहीं पे भी कैश लेकर जा रहे हो और रास्ते में कोई कैश चोरी हो जाए, तो ये इस सेक्शन में कवर्ड है।
सेक्शन 6A है फिडेलिटी। अब फिडेलिटी का मतलब है विश्वासघात, डिसऑनेस्टी का कवर। फिडेलिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है आपके खुद के स्टाफ अगर कोई चीज कर लेवे, या आपका थर्ड पार्टी जो आपके पे रोल पे नहीं है बट आपके बिजनेस के हिसाब से आपको उस पर विश्वास करके उसको माल प्रोसेसिंग के लिए देना पड़ता है। तो सेक्शन 6A आपके एम्प्लॉइज को कवर करता है। अगर आपने 1 करोड़ का फिडेलिटी इंश्योरेंस कवर लिया है तो फिर कोई भी अगर आपका स्टाफ 1 करोड़ तक का कोई फ्रॉड कर ले तो वो पॉलिसी में कवर्ड है। फ्रॉड वुड मीन कि आपने उसको माल कहीं पे भेजा है कि भाई ये माल वहां डिलीवर कर दो, अब वो बंदा वहां गया ही नहीं, वो बैग लेकर गांव भाग गया या कहीं चला गया जहां पर भी वो ट्रेसेबल नहीं है, दैट इज कवर्ड। आपकी दुकान के अंदर रहते हुए अगर कुछ माल को वो एक्सचेंज कर देता है, कुछ धीरे धीरे माल निकाल कर बेच देता है, या आपके नाम पर कुछ और गलत ट्रांजैक्शंस कर लेता है, तो ये विश्वासघात में आता है और आपने जितने अमाउंट का फिडेलिटी इंश्योरेंस कवर किया है उतने अमाउंट का आपको फिडेलिटी का क्लेम मिलता है। अब इसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी तभी क्लेमेबल होती है जब वो प्रूव होती है, विच मीन्स कि अगर आपको किसी पे डाउट है, उस डाउट के बेसिस के ऊपर कोई भी क्लेम सेटल नहीं होता है, आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। विच मीन्स कि अगर आपकी दुकान में 10 स्टाफ है, 10 स्टाफ काम कर रहे हैं, आप जब सुबह ऑफिस में थे तब आपके पास 10 करोड़ का स्टॉक था, जब आप शाम को आए तो 1 करोड़ का माल आपके पास मिसिंग है। अब आपने आपकी सीसीटीवी चेक करे, सब कुछ चेक करा, और फिर आपको अगर पता चल जाता है कि किसी ने कुछ किया है तो आपको उस बंदे के खिलाफ एफआईआर लिखानी पड़ेगी। अगर आपको ट्रांजैक्शन पता नहीं चल रहा है, सीसीटीवी बंद हो चुका है और ऐसी घटना हो गई है, तो यू हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशन, गेट एन एफआईआर डन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर कोई पकड़ा जाता है या पता चलता है कि इस बंदे ने किया है तो इंश्योरेंस कंपनी फिडेलिटी के सेक्शन में आपको क्लेम देती है। सेक्शन 6B फिडेलिटी ऑफ कारीगर या थर्ड पार्टी, जिसके अंदर लॉजिस्टिक कंपनी भी आती है। अब ऐसे लोग जिनको हमको माल ट्रस्ट पे देना पड़ता है, जैसे कि कारीगर हो गए, आपके लॉजिस्टिक कंपनीज हो गई, इनको हम माल देते हैं, अगर वो खुद माल लेकर हमारा अगर भाग जाता है और अगर आपने फिडेलिटी थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस किया है तो आप उसके अंदर उसको क्लेम कर सकते हो। अब इसमें एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखने जैसी है कि जब आपने कारीगर के लिए फिडेलिटी कवर लिया तो सबसे पहले तो आपके पास पास्ट हिस्ट्री होनी चाहिए। पास्ट हिस्ट्री मतलब पहले आपने कितनी बार इस कारीगर से काम किया है, उसको कितनी बार आपने वाइट में लेबर पे किया है, राइट? क्योंकि जो सर्वेयर आएगा और सर्वेयर आपका क्लेम असेस करेगा वो ऑफकोर्स आपकी पास्ट की हिस्ट्री देखेगा। ऐसा भी होता है कि कभी कभी पहली बार ही किसी से काम किया और हो गया, बट फिर उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन लंबी होती है और थोड़ा सा इश्यूज आते हैं। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जितने भी कारीगर से आप काम करते हो उन सब कारीगरों से ज्यादा आप वाइट के ट्रांजेक्शन करें, उनको लेबर वाउचर दे एज वेल एज उनको आप जो लेबर पे करते हो टीडीएस काट कर पे करें। बहुत सारे ज्वेलर्स ऐसा भी करते हैं कि अपने अपने कारीगर से कुछ वाउचर साइन करा कर रखते हैं खुद के पास, यू नो। तो दीज आर फ्यू थिंग्स विच यू कैन डू। और ऑफ कोर्स अगर आपको पर्सनली कुछ समझना है तो यू कैन डेफिनेटली कॉल मी, बिकॉज कुछ चीजें हैं शायद वी कैन नॉट स्पीक क्लियरली ऑन ऑन अ जूम कॉल। तो इस तरह से ये सेक्शन 6B है जो कारीगरों के लिए कवर्ड है। एक तो ऑफ कोर्स यू नो, अगर आप चाहते हो कि हम आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी को एक बार क्रॉस वेरीफाई करें, बिकॉज हर पॉलिसी के अंदर कंडीशन अप्लाइड आता है। कंडीशन अप्लाइड के अंदर हर पॉलिसी के अंदर कंडीशन अप्लाइड होता है कि अगर नेग्लिजेंसी हुई तो आपका इंश्योरेंस कवर नहीं होगा। बहुत दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी में वॉचमैन के कंडीशंस होते हैं, सिक्योरिटी फीचर्स के कंडीशंस होते हैं, सेफ के कंडीशंस होते हैं। काफी बार जो क्लाइंट ज्वेलर है उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपनी पॉलिसी पूरी तरह से रीड कर पाए, और अगर वो करना भी चाहता है तो पॉलिसी की वर्डिंग्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि वो हर चीज समझ नहीं पाता है। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपने इंश्योरेंस किया है तो आप हमसे उसको क्रॉस वेरीफाई करा सकते हैं और हम आपको एक एनालिसिस रिपोर्ट बनाकर दे सकते हैं जिसके अंदर कि अगर कोई चीज छूट गई है तो वी कैन हेल्प यू टू डू इट विथ योर इंश्योरेंस कंसल्टेंट एज वेल। तो ये हमारे कुछ क्लाइंट है जिनसे हम काम करते हैं। और
हमने काफी सारे क्लेम सेटल किए हैं। जैसे आप देख रहे हो, चेन्नई में धनलक्ष्मी ज्वेलर है जिनका 3.45 करोड़ का हमने क्लेम सेटल किया है। ये चेन्नई से कोयम्बतूर ट्रेवल कर रहे थे और बस में ट्रेन में उनका बैग कट गया और बैग में से आई थिंक 10-15 किलो माल चोरी हो गया था। उस वक्त वैल्यू कम थी। फिर बीच में है यूनियन चेन। तो यूनियन चेन का एक बंदा है, उनका खुद का स्टाफ है जो काफी टाइम से काम करता था और उसने धीरे धीरे माल चोरी करना चालू किया। फिर जब स्टॉक टेकिंग करी तो पता चला कि इस बंदे ने इतना माल कहीं और बेच दिया है और वो एमसीएक्स में कुछ पैसा हार गया था या कुछ आईपीएल के मैचेस में, और अपना जो पैसा है उसने और कहीं पे यूज कर लिया। तो उस पर एफआईआर लिखवा कर हमने पूरा इंश्योरेंस कंपनी से करा के 3 करोड़ का लॉस था, जिसके अंदर से कुछ रिकवरी हुई 1 आध किलो की, और पूरा 2.78 करोड़ का हमने उनको क्लेम दिया है। रॉयल चेन मनीष भाई का हमने 3-4 क्लेम सेटल किए हैं। ये एक क्लेम था जिसमें 1.53 करोड़ का उनके फैक्ट्री में फायर हो गया था। उस फायर के अंदर उनका थोड़ा जो स्टॉक था वो भी चोरी हो गया, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। उसको हमने अच्छी तरह से पोइस करके उनको ये क्लेम दिया। उसके बाद में एक और उनकी दूसरी फैक्ट्री पे भी लॉस हुआ था, उसका भी हमने 1.5 करोड़ का समथिंग लॉस पे किया। फिर चेन एंड चेन वसंत भाई बिरावत, मनसुख भाई वासुपति ज्वेलर्स, किरण भाई, और काफी सारे हमने आज मोर देन 1000 क्लेम सेटल किए हैं। तो कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं। ओके फ्रेंड्स, लॉकडाउन के अंदर जो है आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। फ्रेंड्स, एज यू नो दैट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन हमारी जो ऑफिस प्रीमाइसिस है, ये सारी की सारी ऑफिस प्रीमाइसिस बहुत आइसोलेटेड है। वहाँ पर लोगों की आवाजाही कम है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे मोबाइल फोन से अपनी सीसीटीवी द्वारा अपनी ऑफिस का सेफ और अपना ऑफिस को मॉनिटर करते रहे। आप ये काम आपके ऑफिस की किसी भी स्टाफ को डेलीगेट कर सकते हो, तो आप भी करो और उनको भी बोलो कि आप देख देख कर स्क्रीनशॉट खींचकर हर 2 घंटे में 3 घंटे में आप मुझे भेजो। हमारे जवेरी बाजार के अंदर कुछ 25 एक सीसीटीवी नहीं वर्क कर रहे थे, तो मैंने खुद ने इनिशिएटिव लिया और लॉकडाउन के पीरियड द्वारा पुलिस से हमने परमिशन लेकर इलेक्ट्रिशियंस बुलाए और पूरे जवेरी बाजार के अंदर अब 32 सीसीटीवी कैमरास लगा दिए। इसी तरह से आप जहां पर भी हो और आपका जो भी एक लोकल ग्रुप या एसोसिएशन है, तो इस मुश्किल की घड़ी में आपको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आपको खुद को लीडर बनकर आगे बढ़कर आपकी जो एरिया है उसमें सीसीटीवी अगर नहीं है तो आप लगवाइए। ये सिक्योरिटी सिस्टम्स एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। इस वजह से पुलिस आपके इलेक्ट्रिशियन को परमिशन भी देगी काम करने के लिए और आप इसको अच्छी तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस लॉकडाउन के अंदर आप देखेंगे दोस्तों कि जब भी चोरियां होती है, ऑलरेडी चोरियां हो रही है, आपने न्यूज में भी देखा होगा। बहुत सारी चोरियां ऑलरेडी हो रही है। तो चोरी कब होती है? चोर हमेशा, अगर कोई बड़ा वीकेंड है, ठीक है, कि सैटरडे संडे और मंडे को हॉलीडे है, तो 2-3 दिन का अगर उसको पीरियड मिल जाता है तो उस वक्त ज्यादा चोरी होती है। बिकॉज चोर क्या करते हैं कि कोई भी शोरूम या कोई भी ऑफिस जो एक कोई सोसाइटी में है या कहीं पे भी है, वो पीछे के रास्ते से कहीं ना कहीं एक छोटा होल करना चालू करते हैं। वो धीरे धीरे उसको एकदम तोड़ते नहीं है, उस दीवार को कमजोर कर देते हैं और जिस दिन उनको चोरी करनी है उसी दिन उसको पुश करके वो होल पूरा क्रिएट करते हैं, अंदर जाते हैं विद गैस कटर्स और जो उनके पास आजकल बहुत सारे डिवाइसेस है जिससे सेफ कट जाती है। सेफ को काट कर पूरा का पूरा सेफ वो लोग साफ कर देते हैं। तो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि आफ्टर लॉकडाउन बगलर अलार्म एक ऐसी चीज है जो हम हमारे सारे क्लाइंट्स को बोलते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग बगलर अलार्म अभी भी नहीं लगाते हैं। तो अगर हमारे पास बगलर अलार्म हो तो दैट इज अ बेटर थिंग। अब तो नहीं लगा पाएंगे आप, बट ऑफ कोर्स लॉकडाउन के बाद में ये नोट आप अपने कैलेंडर में मोबाइल में कर दीजिए कि बगलर अलार्म आप लगाए। ऑफ कोर्स आपके जो सीसीटीवी है वो 25/7 चालू होना चाहिए। काफी जगह अभी तो ऐसा नहीं होता है, पर कुछ लोग अभी भी ऐसा है जिनका पावर कनेक्शन मेन स्विच से है सीसीटीवी का, तो जब वो मेन स्विच बंद करते तो सीसीटीवी ऑफ हो जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए।
दोस्तों आपका जो सीसीटीवी है उसका पावर सप्लाई कंटिन्यूस चालू रहना चाहिए ताकि आप 24 आवर्स रिकॉर्डिंग कर सको। प्लस जो उसका डीवीआर है आप क्लाउड पे रखें ताकि कोई अगर अंदर घुसता है तो डीवीआर को चोरी करके ना ले जाए या उसको तोड़ ना दे, डिस्ट्रॉय ना कर सके। तो उसको आप क्लाउड पे रखें पूरा का पूरा डेटाबेस। दैट इज द वेरी गुड थिंग टू डू। और इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर आप अपने अपने एरियाज के अंदर जो भी आपके एसोसिएशन है या फ्रेंड सर्कल का एक विजिलेंस ग्रुप बनाए व्हाट्सएप पे। और विजिलेंस ग्रुप के अंदर ऐसे लोग जिनका सीसीटीवी रोड फेसिंग है, राइट, उन लोग को भी लीजिए अंदर ताकि लोग खुद खुद के स्क्रीनशॉट खींच खींच के आपके ग्रुप में भेज सके और आप लोग सब मिलकर आपका जो जिंदगी भर का स्टॉक है उसके ऊपर ध्यान रख सके। फ्रेंड्स, आप बोलेंगे भाई भावेश भाई हमने इंश्योरेंस लिया है फिर ये सब हम क्यों करें। दोस्तों हमने इंश्योरेंस लिया है पर जो हमारा खुद का स्टॉक है वो हमारा खुद का स्टॉक है। इंश्योरेंस का जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज यू हैव टू एक्ट एज अन इंश्योर्ड। ये इंश्योरेंस का पहला नियम है कि अगर आपके पास इंश्योरेंस है फिर भी आपका बर्ताव वैसा होना चाहिए जैसे आपके पास इंश्योरेंस नहीं है। अगर आपका बर्ताव वैसा नहीं है तो इस बेसिस पे भी इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। एक छोटा उदाहरण दूंगा। अगर आपको लग रहा है कि ये लो लाइंग एरिया है और लो लाइंग एरिया के अंदर फ्लड आ सकता है, ठीक है, और 2 दिन पहले ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से आपको चेतावनी आ गई है कि भाई अगर आपका जो भी स्टॉक है उसको आप अच्छी सुरक्षित जगह पे रख दीजिए, नहीं तो फ्लड आने के चांसेस है और आपका माल का नुकसान हो सकता है। ये जानते हुए आपको, अगर आपका कपड़े का व्यापार है, अगर आपने कपड़ा फिर भी नीचे रख दिया और बाढ़ आ गई तो इंश्योरेंस कंपनी कैन ऑलवेज से कि आपके पास समय था, समय होते हुए भी आपने यू हैव नॉट एक्टेड एज एन प्रूडेंट इंश्योर्ड और आपने अपना माल सही जगह पे नहीं रखा। इस बेसिस पे भी इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट किया हुआ है, राइट। तो जैसे बोलते हैं ना, अगर आपकी दुकान में आग लग रही है तो इट इज आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप राइट टाइम पे फायर ब्रिगेड को फोन करें, आप बनती कोशिश करके उसको बुझाए, आप फायर एक्सटिंग्विशर जो है उससे आप खुद आग को बुझाने की कोशिश करें। तो ये सारे एक्टिविटीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको करना है। तो उसी तरह से एज अ गुड इंश्योर्ड आपको मेक श्योर कि आपका जो प्रीमाइसिस है सिक्योर्ड है और फिर भी कुछ हो जाता है तो ये पॉलिसी के अंदर आपके कवर्ड है। काफी सारे क्लाइंट हमको पूछ रहे हैं कि भाई लॉकडाउन के अंदर जब हमारी दुकान 15 दिन तक बंद है तो क्या ये पॉलिसी में कवर्ड है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर ये जो लॉकडाउन पीरियड है ये कवर्ड है। बहुत सारी जो शॉपकीपर पॉलिसी होती है, जैसे बर्गलरी पॉलिसी होती है, फायर पॉलिसी होती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है, उसके अंदर एक ऑक्यूपेशनल क्लॉज आता है, ऑक्यूपेंसी क्लॉज। ये ऑक्यूपेंसी क्लॉज क्या बोलता है कि अगर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है और आपके पास समझिए कि 50 लाख रुपए के मोबाइल पड़े हैं और ये गोडाउन है, आपको किसी शादी में जाना है और आपने आपका गोडाउन लॉक करके आप चले गए 10 दिन के लिए, आप दुबई चले गए और 10 दिन बाद में जब आते हो तब मालूम पड़ता है कि आपकी दुकान को किसी ने तोड़कर अंदर से मोबाइल चोरी कर दिए। तो इस केसेस के अंदर बर्गलरी पॉलिसी में 7 दिन का ऑक्यूपेंसी क्लॉज आता है कि 7 दिन से ज्यादा अगर आप दुकान बंद करके जाना चाहते हो तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना जरूरी है। पर दोस्तों हमारे ज्वेलर्स ब्लॉक पॉलिसी में ऐसा कोई भी ऑक्यूपेंसी क्लॉज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हम जो हमारी दुकान बंद रख रहे हैं ये हम हमारी स्वेच्छा से बंद नहीं रख रहे हैं, ये गवर्नमेंट का कंपलसरी फरमान है जिस वजह से हमको बंद करना पड़ रहा है, राइट। तो आप निश्चिंत रहे, आपकी पॉलिसी में ये 100% कवर्ड है और इसमें कोई भी पैनिक या टेंशन लेने की आपको बात नहीं है। ओके गाइस, मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो दूसरे काफी सारे जगह और एसोसिएशंस ने किया है कि जिन जिन लोगों के पास पर्सनल वॉचमैन नहीं थे उन लोग ने नए पर्सनल वॉचमैन कोई अच्छी एजेंसी से हायर किया है और हायर करके उन्होंने अपनी खुद की सिक्योरिटी बढ़ाई है। नंबर 2, कुछ एसोसिएशन ने कॉमन फंड रेज करके सीसीटीवी लगाए एज वेल एज पुलिस को लेटर लिखकर रिक्वेस्ट करा कि आप पेट्रोलिंग बढ़ाए क्योंकि ये हाई रिस्क आइटम है, एज वेल एज प्राइवेट गार्ड्स को भी अपॉइंट किया है। तो आप अपने अपने एरिया में जिस भी तरह से आप कर सको इन सारी चीजों के ऊपर आप ये करें।
ओके, तो दिस वाज रिलेटेड टू इंश्योरेंस एंड बेसिक एक मैंने आपको आउटकम दिया है. तो because if somebody wants to ask some question related to this, so we can address a few question and then we can move on to the second important task. Yeah. देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस ऑलरेडी इन द चैट. एक Yes. तो ये है कि जैसे आपने बोला होटल में सामान कुछ भी ज्वेलरी का छोड़ के अगर रूम में चला जाता है कोई भी, हाँ जी. वो ट्रैवल इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है. अगर वो Yes. होटल रूम के सेफ में रख के जाता है तो भी वो कवर्ड नहीं होगा क्या? सर होटल रूम के जो सेफ होते हैं ना, नंबर वन, वो जो सेफ है वो इतने मजबूत नहीं होते हैं, राइट. वो बहुत, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड सेफ, राइट. अगर आप स्टैंडर्ड सेफ का डेफिनेशन देखेंगे तो स्टैंडर्ड सेफ मींस अ सेफ विच इज अ फायर एंड अ बगलर प्रूफ सेफ. तो फायर एंड बगलर प्रूफ बनने के लिए उसकी जो चौड़ाई या मोटाई है वो एटलीस्ट 3 इंच के से जारी होनी चाहिए. तो पहली बात, जो होटल्स के सेफ है आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, बट ऑफ कोर्स अगर आप होटल के रूम के अंदर हो, राइट, तो इट इज नॉट एडवाइजेबल. सबसे पहली बात, जब भी आप माल कहीं पे भी लेके जा रहे हो फ्रेंड्स, तो मिनिमम 2 जन होने जरूरी है. अगर 2 जन जा रहे हैं तो आपको आपके स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देना है कि बारी बारी से कोई भी एक आदमी नीचे जाकर वापिस आ सकता है, बट एट नो गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप अपनी क्या बोलते हैं इसको, जो माल है उसको होटल रूम के अंदर रखकर जा सकते हैं. इसका एक और कारण बताऊंगा कि जैसे हमने बताया, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज यू हैव टू एक्ट एज अनइंश्योर्ड. अगर आपके पास बीमा नहीं होता तो क्या आप रिस्क लेते? जो होटल है उसकी चाबियां जो है वो ऑलरेडी होटल मैनेजमेंट के पास होती है. सेफ भी अगर आपकी खराब हो जाती है तो सेफ के लिए भी उनके पास एक यूनिक कोड होता है जिससे वो लोग सेफ खोल सकते हैं. तो कहने का मतलब है, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक रिस्क. अगर आपका स्टॉक है तो आप स्टॉक के साथ में होटल में रहे, जो भी आपको रूम सर्विस चाहिए आप रूम में मंगाए, और अगर आपको जाना है तो माल को लेके जाए या किसी को स्टॉक के साथ में होटल रूम में रखें. या एक तो आपने वैसे ये आंसर कर दिया कि जनरली 2 लोग ही साथ में होने चाहिए, पर किसी सिचुएशन में अगर एक ही एम्प्लॉय है और वो ट्रेन में गुड्स लेके ट्रैवल कर रहा है, और ये क्वेश्चन है कि हमारे पास कि अगर उसको टॉयलेट जाना है ट्रेन में, तो ऐसी सिचुएशन में कोई तरीका या क्या इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए? सर देखिए, मैं वही बताया सर कि एक आदमी आप ट्रेन में नहीं भेज सकते, लंबे सफर पे नहीं भेज सकते. अगर आपके पास जैकेट है और आपका आपका चेन का काम है, आपका बुलियन का काम है, और आप अपने जैकेट के अंदर माल रख सकते हो, तो आप फिर भी ट्राई कर सकते हो. बट अगर आप बैग को आपकी बोगी में रखकर आप टॉयलेट करने चले गए, ठीक है, और फिर किसी ने चोरी किया, तो कवर नहीं होता है. दोस्तों मैं आपको सबको बताना चाहूंगा, मेरे आज 15 साल के एक्सपीरियंस में हमने एक चीज समझी कि मैक्सिमम लॉसेस जो होते हैं वो टिप से होते हैं. टिप मतलब जो आदमी चोरी कर रहा है वो आपकी रेकी कर रहा है, वो आपके साथ 15 दिन से फिर रहा है और वो समझने की कोशिश कर रहा है कि आपका पैटर्न क्या है. अगर आप अकेले जा रहे हो तो उसी बोगी में वो बैठा होगा, उसको खाली 2 मिनट चाहिए. आप 2 मिनट के लिए गए, उसको एकदम शातिर चोर है, वो 2 मिनट के अंदर आपका जो भी चेन काट कर बैग लेके भागना, जो भी करना है वो 2 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देगा. ठीक है. तो फ्रेंड्स, आप जब माल लेकर जा रहे हो तो आपके पास में कौन बैठा है वो आपको पता नहीं है. हो सकता है कि वो इसी फिराक में बैठा है कि कब आप अपना बैग 2 मिनट के लिए छोड़ के जाओ. तो ऐसी गलती हमको नहीं करनी है, और ये इंश्योरेंस पॉलिसी में भी कवर्ड नहीं है. हाँ, अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो और विनय जी समझिए कि आप यहाँ से आप एयरपोर्ट तक अपने आदमी को छोड़ने जाते हो और उसको गेट के अंदर छोड़ देते हो, तो एयरपोर्ट के अंदर वो चला गया, फिर फ्लाइट के अंदर उसको बैगेज लेकर फ्लाइट के अंदर चढ़ना है और बैगेज साथ में रखना है. फिर वापस अगर वो हैदराबाद उतरा तो हैदराबाद एयरपोर्ट पे किसी और आपके स्टाफ को भेजिए ताकि वो उसको रिसीव करने जा सके. तो इस केस के अंदर हमेशा 2 आदमी है, खाली फ्लाइट के अंदर एक आदमी है, दैट इज ओके. बट अगर आप नियम की बात करेंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर ऐसा कोई क्लॉज नहीं है कि हमेशा 2 आदमी होने कंपलसरी है, ऐसा कोई क्लॉज नहीं है. ये हमने जो देखे हैं कि इतने साल क्लेम कैसे होते हैं, प्लस जो सर्वेयर है उनका जो पॉइंट है, वो अगर अकेला आदमी जा रहा है तो उसको नेग्लिजेंसी में करार कर सकता है. यस.
सर एक क्वेश्चन है, मैं आई विल रीड आउट द क्वेश्चन. द बिगेस्ट चैलेंज इन द इंश्योरेंस कवर इज कोरियर ऑफ कॉइन्स थ्रू इंडिया पोस्ट. हाउ कैन दैट बी कवर्ड? व्हाट इज द कॉस्ट? How effective is the claim process if India Post does not help with the policy report? सर ये जो गवर्नमेंट की स्पीड पोस्ट है, राइट, अब ये आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी ऐसी जगह है और बहुत सारे ऐसे पिन कोड है जहाँ पर लॉजिस्टिक्स या कुरियर अंगड़िया बरोबर नहीं जा पाते हैं, तो आपको शायद इंडिया पोस्ट यूज करना पड़ता है. सबसे पहले तो ज्वेलर्स ब्लॉक पॉलिसी में 5 लाख रुपए के ऊपर मोस्टली ये लोग देते नहीं है. नंबर 2, हमने बहुत सारे ऐसे क्लेम्स पहले सेटल किए हुए हैं जिस क्लेम्स के अंदर इंडिया पोस्ट से लॉस हुए हैं और जहां पर हमको फाइनल रिपोर्ट नहीं भी मिला है, फिर भी हमने क्लेम्स सेटल किए हैं. ऑफ कोर्स इसके अंदर डिपेंडिंग ऑन द इंश्योरेंस कंपनी, बट हमने हमारी इंश्योरेंस कंपनी को स्पेसिफिकली बताया है कि जो कुरियर कंपनीज में हम वैल्यू डिक्लेयर करते हैं वो हम पूरी वैल्यू वो ले भी नहीं सकते. हमको वहां पर 10,000 12,000 ऐसे ही बताना पड़ता है. बट हमारी जो इनवॉइस है उसके अंदर एग्जैक्ट कितने कॉइन्स है, उसकी कितनी वैल्यू है, वो होती है. तो जिन्होंने भी कॉइन्स का क्वेश्चन पूछा है, मैं बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर रिद्धि सिद्धि बुलियन, पृथ्वीराज जी कोठारी हमारे क्लाइंट है और उनका ऑनलाइन कॉइन सेलिंग का बड़ा काम है. तो ऑनलाइन उनके जो सेल्स होते थे उसके अंदर फ्लिपकार्ट अमेजोन के थ्रू वो बहुत सारा माल बेचते थे और इसी तरह से कुरियर कंपनीज ब्लू डार्ट और इसमें माल बेच देते थे. तो बहुत टाइम ये माल चोरी होता था और उसके हमने क्लेम्स भी सेटल करे हैं, बट लॉसेस उसके अंदर ज्यादा है. तो आप जब भी ऐसा कोई काम करो तो उसके आपको सिस्टम्स फॉलो करने पड़ेंगे. जब आप पैकेट पैक करते हो तो रिद्धि सिद्धि बुलियन कॉइन्स डिपार्टमेंट में हर पैकेट जब वो लोग सील करते हैं तो उसके ऊपर सीसीटीवी होता है. उनके सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोविजन है कि जैसे उस बॉक्स को बंद करके रिकॉर्डिंग लेते हैं और रिकॉर्डिंग की क्लिप उस सॉफ्टवेयर में अपलोड करते हैं ताकि इट इज प्रूवन कि जो पैकेट पैक किया था उसके अंदर कॉइन था. क्योंकि बहुत बार कस्टमर कंप्लेन करते हैं कि हमको जो पैकेट मिला अमेजोन से उसके अंदर कॉइन ही नहीं है, यू नो. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जिनका भी क्वेश्चन था ये स्पीड पोस्ट और इससे, आई रिक्वेस्ट आप जितना हो सके इसको अवॉइड करें और कोई भी दूसरे कुरियर से भेजें, नंबर 1. और नंबर 2, अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पर कोई और नहीं जाता है तो आप करें और उसका आप इंश्योरेंस कर सकते हो. जब कोई लॉस होता है तो आप पुलिस की एफआईआर या फिर पुलिस को इंटीमेशन आपको देना पड़ेगा. उस बेसिस के ऊपर हम लोग स्पेशली आपके लिए एक स्पेशल मेड पॉलिसी बना सकते हैं. यस. इसी में आगे क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट इंश्योरेंस कवर फॉर कोरियर ऑफ गोल्ड थ्रू इंडिया पोस्ट? इफ वैल्यू डिक्लेयर्ड इज लोअर then will it negatively impact the claim under logistic cover? यस. देखिए फ्रेंड्स, खाली जो गवर्नमेंट पोस्ट पार्सल है, गवर्नमेंट पोस्ट पार्सल के अंदर अनफॉर्चुनेटली अगर आप 5 लाख रुपए की वैल्यू बताते हो तो पार्सल एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे गवर्नमेंट पोस्ट. तो खाली गवर्नमेंट पोस्ट के लिए छूट है कि आप अंडर इंश्योरेंस कर सकते, मतलब अंडर वैल्यू बता सकते हो. बट जितने भी लॉजिस्टिक कंपनी है या जितने भी प्राइवेट अंगड़ियाज है, इन अंगड़ियाज के अंदर आपको पूरा वैल्यू डिक्लेयर करना जरूरी है. क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी का नाम नहीं बता रहा हूँ. जैसे पवन कुरियर है या कोई मरुदर कुरियर है या कोई भी थर्ड पार्टी कुरियर है, आपने किसी भी कुरियर से काम कर रहे हो, ठीक है. अब ये कुरियर कंपनी जो है इसको आप जितनी वैल्यू बताओगे वो उतना वैल्यू लिख कर देंगे आपको. अगर आपका एक पैकेट है, वो पैकेट की वैल्यू 10 लाख रुपए की है, ठीक है. बट विनय जी समझिए कि हमको कुछ जो फ्रेट कम करने के लिए हम 10 लाख के पैकेट को उस अंगड़िया वाले को लाख रुपया डिक्लेयर करते हैं, तो वो लाख रुपए पे आपसे चार्ज लेगा, बरोबर है. फिर जब वो माल लेकर आपका पैकेट लेके जाएगा और उसको अगर ये पता चल गया कि इसके अंदर 10 लाख का माल है, तो नंबर 1 वो खुद ही पैकेट घुमा देंगे और आपको बोलेंगे कि विनय जी ये लीजिए आपका लाख रुपया, आपने हमको जितना डिक्लेयर किया था उतना पैसा आप ले लीजिए. आप बोलोगे भाई मेरे को इंश्योरेंस क्लेम करना है, मेरे को एफआईआर लिख कर दो, तो बोलेगा भाई मैं एफआईआर में या पुलिस के झंझट में नहीं पड़ूंगा, आपने जितना डिक्लेयर किया है उतना पैसा आप ले लीजिए, ठीक है. इसलिए जो भी प्राइवेट कुरियर्स है, इट इज नेसेसरी कि आप उनको पूरा वैल्यू डिक्लेयर करें
और उनको बोल दीजिए कि मेरे पास इंश्योरेंस है, बट अंडर वैल्यू करके उनको मत दीजिए, क्योंकि वो एफआईआर नहीं लिखेंगे और एफआईआर कम की लिखेंगे, तो उस वक्त आपके क्लेम में प्रॉब्लम हो सकता है। Next question is, post lockdown the volume of e-com sales will go up. Can you share more details on how jewelers can cover the transit in e-commerce? Yes friends, e-commerce का जो risk cover है is termed to be the most riskiest and most claim जिसमें बहुत ज्यादा आता है। इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट वेरी कीन। जैसे ब्लू स्टोन हमारा क्लाइंट है जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बेचता है ई कॉमर्स पे, तो ब्लू स्टोन का मैं आपको बता सकता हूँ कि हर महीने एक का दो क्लेम आता है। लास्ट ईयर हम लोग ने उनके कुछ 23 क्लेम सेटल किए हैं, 23 क्लेम्स। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर किसी का प्रीमियम 15 लाख रुपया था और इतने क्लेम आ गए, तो इंश्योरेंस कंपनी ने सीधा उसका जो प्रीमियम बढ़ाकर 25 लाख कर दिया, बिकॉज इतने क्लेम आ रहे हैं, राइट। तो ई कॉमर्स के अंदर आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप किसके थ्रू माल बेच रहे हो, और आपको जो मैंने रिद्धि सिद्धि बुलियन का जो ये पैकिंग का सिस्टम बताया जिसमें वो क्लिप सेव करते हैं, वैसा आपको सेव करना पड़ेगा। जब भी आप पार्सल दे रहे हो तो आपके पार्सल की वीडियो लेकर कि मैंने ये पैकेट पे पैक किया है, और फिर आप अपने जो भी फ्लिपकार्ट या अमेजोन का जो भी लॉजिस्टिक वाला है उसको आप माल दोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये भी देखना है कि जो भी फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है, ये जो वेंडर है या ये जो लॉजिस्टिक कंपनी है, ये लॉजिस्टिक कंपनी अमेजोन की है, राइट। तो आप अमेजोन में भी क्लेम कर सकते हो। तो सबसे पहले तो अगर कोई पार्सल मिसप्लेस होता है तो आप अमेजोन में क्लेम करोगे, फिर अमेजोन अगर पे नहीं करता है फिर आप हमारे को इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करोगे एंड वी विल सेटल योर क्लेम। तो उसकी आप जो पॉलिसी है ज्वेलर्स आप ऐड करा सकते हो, एंड इट इज अवेलेबल विद अस, यू कैन ऑलवेज डू दैट। यस। एक इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है सर, अप टू व्हाट वैल्यू ऑफ क्लेम्स शुड वी नॉट बॉदर टू क्लेम? देखिए द थिंग इज, कोई भी क्लेम, जैसे आपकी कार के अंदर थोड़ा स्क्रैच आ गया और आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसके लिए कौन इतना करेगा, मेरे पास समय नहीं है, या मेरा नो क्लेम बोनस चला जाएगा, तो उसी तरह से ज्वेलर्स ब्लॉक में भी है। अगर आपको लग रहा है कि भाई एक 5-10 हज़ार रुपए का छोटा पार्सल था, छोटी रिंग थी 10 हज़ार रुपए की और हो गई है, और आपके पास अभी इतना समय नहीं है कि ये सारा प्रोसेस कर सके आप, तो आप उस क्लेम को मत करें। बाकी हमारे हर पॉलिसी के अंदर कुछ एक्सेस होता है, तो आपको आपकी पॉलिसी के अंदर कितना एक्सेस है देखना पड़ेगा। अगर 5% का एक्सेस है, ठीक है, आपकी पॉलिसी के अंदर, तो जो एक्सेस होता है, एक्सेस का मतलब है कि अगर आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराया है और आपकी पॉलिसी में 5% कंपलसरी एक्सेस है, तो उसके अंदर ही बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है कि 5 लाख के ऊपर का ही आप क्लेम कर सकते हो, राइट। तो उस बेसिस के अंदर आपको अपनी पॉलिसी चेक करनी पड़ेगी कि मिनिमम डिडक्टेबल कितना है। अगर मिनिमम डिडक्टेबल नहीं है और आप क्लेम करना चाहते हो तो आप क्लेम करें, जैसे हम लोग ब्लू स्टोन का करते हैं, तो उसमें वो छोटे पार्सल होते हैं तो भी वो क्लेम करते हैं, बिकॉज उनका एनी विच वेज नेक्स्ट ईयर वो नो क्लेम बोनस तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि एक क्लेम करो या 10 क्लेम करो, इट इज इक्वल। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू डू बिजनेस, बाकी छोटे छोटे जो 5-10 हज़ार रुपए के क्लेम है वो करके कोई पॉइंट नहीं है, और उसके ऊपर का क्लेम है तो यू शुड क्लेम, व्हाई नॉट। जब हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसी है हमारे लिए, तो इट इज अ प्रोसेस, वी विल गिव यू द क्लेम, नो प्रॉब्लम। तो ये जो भी आप ऑनलाइन का आप लोग काम करना चाहते हो, नीचे हमारे पास दो और प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको, which will help you do your regular sales as well as e-commerce sales. Yeah, over to Vinay ji. Yes. Vikas, you are unmuted. Vikas. या भावेश, या विकास जी, मैंने कई बार स्टडी किया कि पीपल टेंड टू लिसन बट दे फॉरगेट द थिंग्स. yes, The insurance subject is something that few steps and very tiny steps have to be taken right. during the process system. So is there any checklist on do's and don'ts on insurance? If you have anything like that,
कैन यू प्लीज शेयर योर थॉट्स कि चलो अपने को अगर आंगड़िया से पार्सल भेजना है तो वी शुड फॉलो दिस स्टेप। अगर अपने को सिक्योरिटी लैब्स है या अपनी कोई सपोज करो कि सीसीटीवी लैब्स है तो व्हाट मेजर्स शुड वी टेक, इस टाइप का कोई आपके पास कोई टू डू या चेकलिस्ट अगर कुछ भी हो तो लोगों को क्या है कि वो देखने से थोड़ा दिमाग में रहता है कि भाई चलो ये ऐसा करने से ठीक है, ऐसा नहीं करने से ठीक है। तो नहीं, कैन यू प्लीज? yeah, sure, I already have it. If you want, I'll just share one minute. एक minute, I'll just see it. Because I think it will be very helpful that the majority of the questions will be answered in that. Another thing is that about the fidelity. So generally होता क्या, लोग स्टॉक का तो 10 करोड़ का इंश्योरेंस करा लेते हैं। हाँ जी। बट जो आपने कहा कि अगर चाबी किसी की गुम गई है या कोई आपकी डुप्लीकेट चाबी बना के आपका अगर कोई स्टाफ ही अगर आपके वहां पे कुछ करता है तो that risk is covered under fidelity, right? Yes, it is covered in fidelity. So if our stock is insurance is of 10 crores and fidelity is only 1 crore और वो स्टाफ जो है वो अगर 5 करोड़ की चोरी करके चला जाता है तो हमें क्लेम कितना मिलेगा? जितना आपका फिडेलिटी का सम इंश्योर्ड है सर। तो दैट मीन्स इफ अगर आपको वो रिस्क लगता है तो फिडेलिटी शुड आल्सो बी द इक्वल अमाउंट ऑफ द इंश्योरेंस कवर्ड। सर इक्वल अमाउंट तो क्या है, मोस्टली इंश्योरेंस कंपनी 5 करोड़ के ऊपर आपको देगी नहीं। अच्छा। हाँ, तो आपका जितना ट्रांजिट है उस ट्रांजिट अमाउंट तक का आप करा लीजिए। ओके। और अगर सपोज करिए कि हमने इंश्योरेंस पॉलिसी बनाते वक्त हमने लिखा कि भाई हमारे सीसीटीवी भी है और हमने सिक्योरिटी भी रखा है रात को, बट अगर किसी कारणवश उसी दिन सीसीटीवी नहीं चला और उसी दिन कोई घटना हो गई तो उस केस में क्या होता है? नहीं, अगर आपका सीसीटीवी था और उसी दिन अगर कुछ हो गया तो दैट इज ओके। आपको इंश्योरेंस कंपनी खाली उस बेस के ऊपर क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती है। बट सर मैं आपको बताऊंगा कि आज अराउंड 32 इंश्योरेंस कंपनी हो चुकी है, ठीक है। सारी इंश्योरेंस कंपनियों के अंदर बहुत कंपटीशन है एंड विद कंपटीशन क्या होता है कि स्लैशिंग ऑफ रेट्स चालू हो जाती है। तो जब स्लैशिंग ऑफ रेट चालू हो जाती है तो हर आदमी कम से कम रेट में इंश्योरेंस करने की कोशिश करता है। बट जब कोई इस टाइप के लॉसेस आते हैं जहां पर इंश्योरेंस कंपनी कोई भी एक पॉइंट निकाल कर हट सकती है तो वो कोशिश करके हट जाती है। तो फिर वो चाहती है कि आप फिर लीगल फाइट करो और लीगल क्लेम करो। तो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो इंश्योरेंस करा रहे हो वो किसके थ्रू करा रहे हो। आपका जो मीडिएटर है उस मीडिएटर का रिलेशन उस इंश्योरेंस कंपनी में कितना है और उसका कितना बिजनेस पोर्टफोलियो है वहां पर। क्योंकि अगर उसका पोर्टफोलियो होगा तो ही वो उनसे फाइट कर अगर आपको क्लेम दे पाएगा। बाकी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं दे आर ऑल वेरी मटीरियलिस्टिक एंड प्रोफेशनल। हमेशा उनका जो व्यू होता है नेगेटिव से ही चालू होता है कि ये क्लेम हम कैसे ना पास करें। तो आपके हिसाब से मतलब जितना सेफ आप चलो उतना ही बेटर है? जितना सेफ आप चलो 100% दैट इज द बेस्ट वे। ओके। मेरे हिसाब से the people are more concerned right now about the lockdown process. Is there anything in the insurance policy या इंश्योरेंस टर्म में लॉकडाउन बोल के कोई टर्म है प्रीवियसली या पहले? शायद मेरे हिसाब से ऐसा कोई टर्म था कि नहीं। हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो ज्वेलर्स ब्लॉक पॉलिसी है उसके अंदर ऐसा कोई भी टर्म लॉकडाउन के अंदर अगर आपका दुकान बंद रहता है तो उसका कोई भी एक्सक्लूजन नहीं है। इट इज कवर्ड इन द पॉलिसी। यस, इट इज कवर्ड इन द पॉलिसी, राइट? यस, इट इज कवर्ड। ओके, सो वी कैन मूव। आई थिंक देयर इज वन मोर क्वेश्चन वी हैव इन द चैट। आई विल जस्ट चेक। सर आपको मेरा नोट्स दिख रहा है? कैन यू सी माय जस्ट
There is one question from Mr. Natesh Prabhu. Do you offer insurance for multiple showrooms on covering loss on anywhere, any number of times basis, like Lloyd's House of London? नहीं, come again. You said. इसमें ये पूछ रहे हैं शायद, do you is there any insurance for multiple showrooms on covering loss on anywhere, any number of times basis? या नहीं, जो इट इज देयर ऑफ कोर्स. हमने जितने भी पॉलिसी दी है, चाहे सैनको गोल्ड को दी है या वामन हरी पेठे को दी है, गाडगिल पीएन गाडगिल को दी है, तो ऑल दीज पीपल हैव मल्टीपल शोरूम्स, और मल्टीपल शोरूम्स को हमने सिंगल पॉलिसी में कवर किया है, एंड इट इज पॉसिबल एंड इट इज देयर. या आई बिलीव सर वो पूछ रहे हैं एक शोरूम उनका बाहर है, इंडिया के बाहर. इंडिया के बाहर है, हाँ जी. नहीं, कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर है उसका इंश्योरेंस आप इंडिया से नहीं कर सकते हो, ठीक है. सो दैट इज अ लॉ बाय गवर्नमेंट. बट उसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगर किसी का शोरूम अमेरिका में है, हमारे हैदराबाद में कुछ क्लाइंट है जिनका शोरूम अमेरिका में है, तो हम उनको अमेरिका की पॉलिसी अलग देते हैं और इंडिया की अलग पॉलिसी देते हैं. और अगर वो ज्वाइन भी करना चाहते हैं तो फिर हमको उनको री इंश्योरेंस करके एक ही पॉलिसी में दोनों मर्ज करना पड़ता है. इट इज ऑल पॉसिबल. राइट सर. एक क्वेश्चन ये है, सीक्वल इज ऑफरिंग फिडेलिटी इंश्योरेंस, डू वी टेक इट, इफ वी टेक इट फ्रॉम देम विल इट कवर ओनली सीक्वल और अदर कैरियर्स एज वेल? या इफ यू टेक इट फ्रॉम सीक्वल, इट विल कवर ओनली सीक्वल. फिर आपको बीवीसी के लिए अलग लेना पड़ेगा. एंड फिर अगर कोई छोटा लॉजिस्टिक कंपनी है कल, या कोई आंगड़िया है, तो वो सारे लोग इसमें कवर नहीं होंगे. प्लस फ्रेंड्स, जवेरी बाजार में भी सीक्वल और बीवीसी अपने कवर देते हैं, तो ऑफ कोर्स दे गिव यू एन ऑफर कि आपको कहाँ से कराना है. आप चाहो तो हम यहाँ से, अपने यहाँ से करा सकते हो, वहाँ से करा सकते हो. कंपैरिजन में जाएंगे तो अपना जो आईसीआईसीआई कार्ड या बजाज अलायंस का जो प्रीमियम है इज वेरी यू नो रीजनेबल, ठीक है. तो आप दोनों से कोट ले लीजिए और उस तरह से कर सकते हैं. खाली इसमें एक चीज विकास जी क्या होती है कि जब जिस आदमी से आप माल ट्रेवल करा रहे हो, ट्रांसपोर्ट करा रहे हो, अगर इंश्योरेंस भी उसका ही है, ठीक है, तो आप उनसे फाइट नहीं कर पाओगे. अगर आपका इंश्योरेंस थर्ड पार्टी से है तो लीगली अगर हमको उनके साथ में फाइट करना है तो हम और अच्छी तरह से उससे फाइट मतलब कर पाएंगे. तो इस वजह से जवेरी बाजार में चाहे रॉयल चेन हो, संगम चेन हो, इन सबका जो लॉजिस्टिक का इंश्योरेंस है, थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस हमने ही किया हुआ है, ताकि कल उठ के अगर कोई लॉस होवे और लीगली भी हमको कंपनी से फाइट करना पड़े तो हम कर सकते हैं. या So it is always advisable to take your own policy rather taking the Angadiya policy. Of course, yes. अच्छा, there is one more question which I think most of us follow in our process is the delivery चालान जो हम यूज करते हैं, जो इनवॉइस या डिलीवरी चालान, वो सिर्फ सफिशिएंट है टू सेंड गुड्स थ्रू द पार्सल और आंगड़िया और सेल्फ कैरी, और इज देयर एनी अदर डॉक्यूमेंट्स वी शुड कैरी ड्यूरिंग, और या अपने माल भेजते तो उस समय चाहिए ऐसा और कोई डॉक्यूमेंट जिससे इंश्योरेंस क्लेम में इजी हो? सर, अगर आप लॉजिस्टिक से माल भेज रहे हो, राइट, और अगर आपने एक सेल किया है तो ऑफ कोर्स सेल बिल आपको साथ में डालना ही पड़ेगा, राइट. अगर आपने सेल किया है तो अगर ऑन अप्रूवल जा रहा है तो वाउचर चाहिए. करेक्ट. या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, दिख रही है सर. दिख रही है. मैं आपको एक वाउचर की कॉपी बता देता हूँ. 1 सेकंड. इसके अलावा भी कोई वाउचर चाहिए या कोई कॉपी चाहिए? नहीं, आप देखिए, जब आप लॉजिस्टिक कंपनी से बेचते हो तो एक तो लॉजिस्टिक कंपनी का फॉर्म होता है, उस फॉर्म के साथ में आप जिसको भी माल भेज रहे हो, ठीक है, क्यों भेज रहे हो, अगर आप सेल किया है तो सेल बिल चाहिए, अगर आप किसी लेबर माल बनाने दे रहे हो तो लेबर वाउचर चाहिए, बराबर है. और नॉट ओनली फॉर लॉजिस्टिक सर, अगर आप अपने ऑफिस के स्टाफ को भी बाहर भेज रहे हो या आप खुद बाहर जा रहे हो, ठीक है, तो भी आपके पास कुछ भी चीज अगर आपकी दुकान से बाहर जाएगी तो इट हैज टू बी सपोर्टेड विद डॉक्यूमेंट्स. नथिंग कैन गो आउट ऑफ योर शॉप विदाउट अ डॉक्यूमेंट. आप अगर यहाँ पर देख सकते हो तो एक सैंपल ज्वेलर का एक वाउचर बनाया गया है. करेक्ट. आपका अगर स्टाफ जा रहा है ट्रेवल पे तो उसका नाम, वो कहाँ से कहाँ पर ट्रेवल कर रहा है, क्या आइटम है, कितना वजन है,
और उसके अंदर ये नोटिफिकेशन है कि जब तक माल बाहर रहेगा और हमारे पास नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा स्टॉक हमारा है और ये हम सैंपलिंग के लिए अमित जी को अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो माल लेकर टेस्ट कर सके। उसमें जो आपका एम्प्लॉय है की सिग्नेचर और देने वाले ओनर का प्रकाश जैन, उन दोनों की सिग्नेचर होगी। ये एक ट्रेवलिंग वाउचर है जो आपका आदमी जब फिजिकल माल लेकर तब होता है, और आप जब लॉजिस्टिक से माल बेचते हो तो लॉजिस्टिक के साथ में माल बेचते हो इसी टाइप का वाउचर बनेगा। अगर ऑन अप्रूवल है तो पार्टी का नाम लिखा जाएगा जिस पार्टी को आप माल भेज रहे हो। प्लस आप अपने स्टाफ के लिए ये एफिडेविट जो दिख रहा है, ऐसा एफिडेविट बना सकते हो ट्रेवलिंग में, ताकि अगर कोई पुलिस वाला उसको पकड़े कि भाई वो माल किसका है तो वो एफिडेविट बता सकता है। और वो बता सकता है, उसमें अंदर लिखा होगा कि आई गिरीश सोनी प्रोपराइटर एल गोपाल ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड ऑथराइज मिस्टर सो एंड सो टू ट्रेवल विद सो एंड सो मच ऑफ स्टॉक, और ये स्टॉक की मेरी स्टॉक है पर आई एम ऑथराइजिंग हिम टू ट्रेवल विद स्टॉक। तो ये ट्रेवलिंग वाउचर आप कर सकते हो। और विकास जी अगर आप मेरे को ग्रुप में डालोगे तो मैं उसको आपको सैंपल्स भेज दूंगा सो दैट यू नो आप सबको ये सैंपल्स डेफिनेटली आप ये चीजें हमारे से शेयर करिए, हम लोगों को बहुत जरूरत आएगी इसकी, काफी लोगों को जरूरत पड़ती है। जनरली ये मतलब होता है कि लोग डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली नहीं होने की वजह से कई बार क्लेम सुन के सेटल नहीं होते हैं। सो इट्स पार्ट ऑफ मतलब यही है कि अगर आपकी तरफ से अगर कोई चेकलिस्ट हमें मिल जाए कि भाई अगर आपको आंगड़िया से भेजना है तो ये करना है, मैं ये भी भेज दूंगा आपको। इट विल डेफिनेटली हेल्प अस अ लॉट कि भाई ये चेकलिस्ट आप फॉलो करो। आप अपने जो भी डिस्पैच डिपार्टमेंट है या अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, आप उनको ये चेकलिस्ट दो कि भाई अगर आपको ये माल भेजना है, सिक्वल से भेजना है या बीबीसी से भेजना है, या अगर हम लोग भी कोई कैरी करते हैं या कोई भी तरह से आपको रिफाइनरी में भेजना है, आपको कारीगर को भेजना है, आपको कैसे मंगाना है, तो प्लीज 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 डू फॉलो दिस चेकलिस्ट। अगर ऐसी कोई चेकलिस्ट हो तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो डॉक्यूमेंट। Sure sir, sure, I will do that sir. So is there any presentation from your side pending or we sir, can take? I'll just brief you on this. ये आप जैसे देख रहे हैं ये एक वारंटी शीट है जो हम हमारे पॉलिसीज के साथ में देते हैं। इसको एक ब्रीफ में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि ज्वेलर्स ब्लॉक पॉलिसी में क्या एक्सक्लूजन है। फर्स्ट एक्सक्लूजन जो हमने आपको बताया कि आप अपना माल कहीं पे भी रख कर नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पर एक इमेज दिख रहा है जहाँ पर एक आदमी ने अपना बैग बस में रखकर फूड मॉल चला गया और पीछे से कोई चोरी कर लिया, तो ये चीज पॉलिसी में कवर्ड नहीं है जो आपको कवर करना है। नंबर 2, आपके एम्प्लॉयज के लिए और थर्ड पार्टी के लिए आप डिसऑनेस्टी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए। कोई भी चीज जब आप अपनी स्वेच्छा से किसी को देते हो और वो आदमी उस चीज को माल लेकर भाग जाता है तो वो कभी भी चोरी नहीं की जाती है। वो आईपीसी के अंदर भी जो 389 या 340 का जो कलम है वो लगता है, चोरी का कलम नहीं लगता है। उसके अंदर 421 408 मतलब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का कलम लगता है। उसके लिए आपके पास फिडेलिटी पॉलिसी होगी तो ही उसके अंदर जो है वो पॉलिसी कवर होती है। कोई भी लॉस जो होती है अगर वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो और आप उसको प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो वो भी पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिखेंगे और इंश्योरेंस कंपनी भी उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगी। तो मेक श्योर दैट यू हैव योर सीसीटीवी प्रेजेंट। एक मैंने इसके अंदर इंपॉर्टेंट नोट डाला है कि आप, हाँ थोड़ा वॉइस कैसे आ रहा है, अगर लोग म्यूट कर पाए अपने आप को। हाँ जी, मैं ये बोल रहा था कि जो भी आप काम करते हो वो काम आप नियमित जो काम है उसको एक सेम पैटर्न में ना करें, अपने प्रोसेसेस को चेंज करते रहे। अगर आप हर दिन एक पर्टिकुलर ट्रैवल कंपनी के बस से ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल कंपनी को चेंज करें। आप अपनी दुकान का जो खोलने और बंद करने का जो समय है उसको नियमित रूप से चेंज करें। आप अगर एक पर्टिकुलर बैग में सामान लेकर जा रहे हो तो उस बैग को चेंज करें, उसके चेन को, लॉक को चेंज करें। आप अपने ऑफिस के अंदर जो भी आपके मेन डोर के लॉक्स है उसको 6 महीने में, साल में एक आध बार चेंज करें। यू नो, तो हर चीज को आपको बीच बीच में चेंज करते रहना है ताकि कल उठ के कोई भी आदमी ने अगर आपकी दुकान की मेन डोर की चाबी बनाई है तो वो रात को खोल ना पाए, राइट। प्लस ये आप बैग जो देख रहे हो, हमने एक बीच में एक सेफ्टी बैग बनाई है ट्रेवलिंग के लिए। इस बैग का जो कॉस्ट है अराउंड 8,000 रुपीज है। इस बैग के अंदर खासियत ये है
कि इसके अंदर वायर सर्किट सेंसर्स है। अगर आप इस बैग को लेकर बॉम्बे से हैदराबाद जा रहे हो और रात को आपने अपनी बैग को सीट से बांध दिया है, राइट, लॉक कर दिया है, तो कोई भी आदमी अगर इस बैग को काटने की कोशिश करेगा तो उसमें से अलार्म बजेगी, एज वेल एज चेन को काटने की कोशिश करेगा तो भी उसमें से अलार्म बजेगी। प्लस आप इस बैग के अंदर जीपीएस डाल सकते हो, ताकि आपका, अगर आपको आपके स्टाफ को मॉनिटर करना है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है, तो वो भी आप जीपीएस डिवाइस अलग से होता है, वो भी आप ले सकते हो। तो दिस इज वन थिंग विच वी हैव डन फॉर द ट्रेड, ताकि चोरियां कम हो। प्लस एक जो फोटो है इसके अंदर मैंने बताया कि जितना हो सके आप अपना माल आपकी जैकेट्स में रखे, बंडी में रखे, ताकि लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। अगर आप बस या ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो तो हमेशा आपका माल आपके साथ होना चाहिए। और रात को आप जब सो रहे हो तो म्यूचुअली अगर 2 आदमी जा रहा है तो शायद एक आदमी अगर जागे, दूसरा आदमी ध्यान दे, या आप अपने सिर के नीचे बैग रखकर सोए। तो जितना भी प्रोविजन आप कर सकते हो, इट इज ऑलवेज गुड फॉर यू। तो ये वारंटी शीट मैं आपके साथ में डेफिनेटली चेंज कराऊंगा। और विनय जी और विकास जी, मैं आपके माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पॉलिसी को एक बार क्रॉस वेरीफाई करें, तो मेरा नंबर आप ले सकते हैं और आप अपनी पॉलिसी कॉपी मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मैं वी कैन फॉर यू ऑल वी कैन डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपको एक पूरा एनालिसिस रिपोर्ट बनाकर दे सकते हैं कि आपकी पॉलिसी में आपने क्या क्या चीज किया है या क्या चीज नहीं कवर की है। तो आप अपनी पॉलिसी को अपग्रेड कर सकते हैं। और मैं हम 2-3 चीज और हम करते हैं, तो आई वुड जस्ट वांट टू ब्रीफ यू ऑन दैट। ये एक ऑफ कोर्स जो लॉकडाउन पीरियड में हमने जो एक आर्टवर्क बनाया था वो आपके सामने है कि आप अपनी दुकान को आपकी सीसीटीवी से क्रॉस मॉनिटर करते रहे और सिक्योरिटी गार्ड्स और वो सारी चीजें रखे हैं। ओके गाइस, विद इंश्योरेंस हम 2 और चीज करते हैं जिससे कि हम आपके बिजनेस को और बढ़ा सके। तो हमने आईएजेस एग्जीबिशन के अंदर जो नितिन खंडेलवाल जी है, जीजेसी के उस वक्त चेयरमैन थे, और काफी सारे इंडस्ट्री के लोग, बीवीसी लॉजिस्टिक्स, अशोक मीनावाला, एमराल की श्रीनिवासन जी, कल्याण ज्वेलर्स के कल्याण जी, हमने 2 सर्विसेज चालू की थी, जिसमें सबसे पहला सर्विस है jewelashore.com। ये एक हमारा मोबाइल ऐप है जिससे कि जो रिटेल ज्वेलर है वो अपने दुकान में विद इन 2 मिनट्स में माल के साथ में अपने कस्टमर को इंश्योरेंस का पॉलिसी दे सकता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे जो ये मोबाइल एप्लीकेशन है, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर आपको सबसे पहले रिफिल कराना पड़ता है। तो समझिए कि आपने 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी एल गोपाल ज्वेलर्स ने मोबाइल रिफिल करा दी, तो आपका जो ऐप है उसके अंदर बैलेंस दिखेगा इंश्योरेंस वैल्यू 1 करोड़। जब आपका कस्टमर आपके दुकान आता है और वो माल परचेस करता है और आप चाहते हो कि उसका इंश्योरेंस हो, तो आपको सिर्फ आपके कस्टमर का जो भी वैल्यू है, समझो 1 लाख रुपए का वैल्यू, उसका इनवॉइस नंबर, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, या जो भी डिटेल्स आप शेयर करना चाहते हो। अगर खाली ईमेल आईडी डालना चाहते हो तो खाली ईमेल आईडी डालिए और ओके करेंगे। वैसे ही कस्टमर को रियल टाइम में इंश्योरेंस कंपनी से एक मेल जाएगा, डियर सौम्या जी, we understand that you purchased jewelry from L Gopalan Jewellers. We are happy to state that your product is insured for a value of 1 lakh rupees for a period of 1 year. So आज से 1 साल के अंदर अगर आपकी माल की चोरी हो जाती है तो आप ये नीचे दिए गए नंबर पे आप क्लेम रजिस्टर कर सकते हो। इसमें ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नंबर और हमारे नंबर साथ में होंगे। और इसका फायदा ये है फ्रेंड्स कि लॉकडाउन के बाद में आप देखेंगे कि कस्टमर आने का जो स्पीड है शायद थोड़ा स्लो हो जाएगा। प्लस बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो शायद आपसे जीएसटी के बिल नहीं लेते हैं और आप चाहते हो कि आप अपना बिजनेस का टर्नओवर व्हाइट में बढ़ाए। तो बहुत सारे हमारे क्लाइंट इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं। वो कस्टमर को बोलते हैं कि भाभी जी आप बिल ले लीजिए, आपको इंश्योरेंस फ्री है। 1 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस है उसकी जो कॉस्ट है एज ए ज्वेलर आपको 300 या 400 रुपया लगती है, राइट। तो 1 लाख रुपए का जो आपका कॉस्ट है वो 300-400 रुपया है। बट अगर वो कस्टमर कहीं से इंश्योरेंस करवाने जाएगा तो 1 लाख रुपए पे इंश्योरेंस कंपनी उससे 3 या 4 हजार रुपया लेगी, ठीक है। तो 3-4 हजार रुपए का इंश्योरेंस आपको
आपको 300-400 रुपए में पड़ रहा है, आप कस्टमर को फ्री दीजिए और कस्टमर को मोटिवेट करिए कि वो आपसे बिल ले और पूरा का पूरा जो जीएसटी भरे, राइट। तो बहुत सारे कस्टमर इसको बहुत अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं। आप अपने क्रिएटिव तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट में यूज कर सकते हैं फ्री इंश्योरेंस का। प्लस हमारे कुछ क्लाइंट्स ने ऐसा भी किया है कि उनके कस्टमर माल लेकर गए और उनकी चोरी हुई। चोरी होने के बाद में हमने क्लाइंट को पूरा क्लेम दे दिया 2 लाख रुपए का। क्लेम देने के बाद में जो ज्वेलर है उसने अपने कस्टमर को अपनी शोरूम में इन्वाइट किया और शोरूम में इन्वाइट करके उनको बोला कि आप 2 लाख रुपए तक की कोई भी ज्वेलरी आप परचेज कर सकते हो। तो उनसे 2 लाख की परचेज करवाई और उनके साथ में फोटो खींचकर फेसबुक में अपलोड किया और उसका टैगलाइन था कि हम खाली ज्वेलरी बेचते नहीं है, हमको आपकी चिंता भी है, जिस वजह से हम आपको इंश्योरेंस के साथ में ज्वेलरी बेचते हैं। तो टैगलाइन था वी केयर, वैसे करके। तो आप भी अपने कुछ भी इनोवेटिव आइडियाज से इसको कर सकते हो एंड वी आर ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ इनोवेशन विच यू वांट। प्लस ये सॉफ्टवेयर आप चाहो तो हम आपके सॉफ्टवेयर के अंदर रिटेलर के सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन के बाद में क्या होता है कि इंटीग्रेशन के बाद में आपको मोबाइल ऐप खोलने की जरूरत नहीं है। रियल टाइम में जैसे आप बिल बनाओगे वैसे का वैसा कस्टमर को ईमेल हो जाएगा। तो रांका ज्वेलर्स और काफी सारे दूसरे ज्वेलर्स ने इस चीज को ऑलरेडी यूज कर लिया है। तो अगर इसके ऊपर कुछ क्वेरी है तो आप हमसे या हमारा जो भी मार्केटिंग हेड है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसका प्रीमियम मैंने आपको बताया। हाँ जी, दिस इज अ वेरी गुड फीचर। आई थिंक अगर रिटेलर इसको अडॉप्ट करे तो काफी मतलब कस्टमर को एड ऑन बेनिफिट हम दे सकते हैं। हाँ जी, एड ऑन बेनिफिट भी दे सकते हैं। प्लस सर कस्टमर को बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं और कस्टमर्स के लिए सर मैं बताना चाहूंगा ज्वेलर जो है ये फैमिली डॉक्टर जैसे होता है वैसे होता है। अपने दुख सुख की बात वो कस्टमर अपने ज्वेलर से बात करता है। बहुत बार क्या होता है कि उसकी बच्ची की शादी है और वो 3 महीने पहले आपसे कुछ ज्वेलरी परचेज करके ले लेता है। अब उसकी पूरी जमा पूंजी जो उसको अपनी बेटी को देना है उसने तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर शादी के पहले उसके घर में कोई चोरी हो गई, ठीक है, तो बेचारा मतलब टूट जाएगा। अब आपके और हमारे लिए 5 लाख रुपया कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, बट वो आदमी के लिए 5 लाख उसकी पूरी जिंदगी का एक सेविंग है जो उसने अपने बच्ची के लिए किया है। तो मेरा निवेदन सारे ज्वेलर से ये भी है कि अपार्ट फ्रॉम ओनली बिजनेस लेट अस हेल्प एंड कंज्यूमर्स टू प्रोटेक्ट एंड इंश्योर देयर ओन स्टॉक, ताकि अगर कोई घटना हो जावे तो शादी के पहले वापस वो एक नया ज्वेलरी बनाकर अपने बच्ची को दे सके और वो कस्टमर जिंदगी भर आपको याद रखेगा कि आपने ऐसा उनको एक सहूलियत जो है वो दी है। ओके सर, आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच वी हैव, बिकॉज ये जो ज्वेल फीना है इसके बारे में मैं खाली शॉर्ट में बताऊंगा, बिकॉज अगर आप चाहते हो कि हम ज्वेल फीना को समझाएं तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप एक और नेक्स्ट टाइम कोई हमें समय दीजिए जिसमें हमारी ज्वेल फीना की टीम रहेगी और ये प्रोडक्ट आपको अच्छी तरह से बताएगी। Friends, Bhavesh, there is one question on this regard. yes, Is there any possibility that a jeweler, if don't take a block policy, he can only take this customer policy? of course, एकदम yes, you don't both are different policies. आपके पास अगर ज्वेलर्स ब्लॉक पॉलिसी हमारी नहीं भी है तो भी आप ये प्रोडक्ट इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। अगर ब्लॉक पॉलिसी कहीं और से है तो ये आप सेपरेटली एक पॉलिसी और ले सकते हो उसके लिए, करेक्ट? हाँ, यस एकदम, दोनों अलग अलग पॉलिसी है, दोनों का कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। तो इसमें जनरली कितने तक की पॉलिसी लेनी चाहिए, क्योंकि सबकी तो सेल होती रहती है, तो इंश्योरेंस कंपनी कितने तक कवर करती है इसको? सर आप कितना भी कर सकते हैं, जैसे देखिए मलाबार है तो मलाबार गोल्ड हर प्रोडक्ट के ऊपर इंश्योरेंस देता है, ठीक है। नहीं तो, मेरे पूछने का मतलब ये था कि सपोज करो किसी शोरूम की दिन की 25 लाख की सेल है, राइट? हाँ जी। तो वो 25 लाख करके कितने दिन तक जाते रहेगा, मतलब उसको कितने तक का इंश्योरेंस लेनी चाहिए इसमें कस्टमर के लिए? हाँ सर ये जो है ना, ये मोबाइल का जो रिफिल कराते हैं वैसा है। तो अगर आपका पूरे साल का जो सेल्स टर्नओवर है, अगर आपका पूरे साल का सेल्स टर्नओवर समझो कि 20 करोड़ का है, ठीक है, तो आप पहले 10 करोड़ का ले लीजिए या 5 करोड़ का ले लीजिए, या आपको टेस्ट करना है तो आप पहले 2 करोड़ का ले लीजिए। और जैसे आप 2 करोड़ का लेंगे तो आपका बैलेंस 2 करोड़ का हो जाएगा।
फिर लाख लाख 2-2 लाख कर करके आप जैसे जैसे सेल करते जाएंगे, तब आपका बैलेंस 1 करोड़ और 75 लाख हो जाता है। तब आप वापिस आरटीजीएस करके आपका जो टॉपअप कर लीजिए और बढ़ा दीजिए उसको। It's basically like a prepaid. या इट इज लाइक अ मोबाइल प्रीपेड कार्ड। आपका जैसे Okay. हाँ बैलेंस खत्म हो गया तो और कराइए, वैसे करके। Okay, now we can move on to the next. हेलो, हाँ जी, आवाज मुझे नहीं आ रही, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, we can hear you. I guess विकास गलती से म्यूट हो गया है आपका। कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। कुछ या मिनट। विनय जी, हाँ, ये ज्वेल विकास जी has said we can continue forward. sure, this is jewelfina.com. This is one of its kind product which we have got in India. Friends, jewelfina.com is sell jewelry on EMI. आपने शायद कहीं देखा होगा, बहुत सारे स्टोर्स के अंदर लिखा हुआ है बाय नाउ पे लेटर। ये सारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा है। कटारिया इंश्योरेंस has started this initiative to support jewelers to increase their business. दोस्तों, जितना भी कार इंडस्ट्री है या मोबाइल इंडस्ट्री है, ये सारा डेवलप होने का कारण है ईएमआई। आज हमारे ऑफिस में जो स्टाफ काम करता है उनके पास भी आईफोन है, और आईफोन इस वजह से है बिकॉज 5,000 रुपया देकर वो एक आईफोन खरीद सकता है और 24 महीनों में और किश्तों में पैसा निकाल कर दे सकता है। तो दोस्तों, ये ज्वेलरी में हमने लाया है, उसमें ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस है जिस वजह से इसको थोड़ा मॉडिफाइड करके हमको लाना पड़ा है, और अभी भी हम इसके अंदर बहुत काम कर रहे हैं। हर दिन हर महीने इसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। मैं आपको एक बेसिक में बताऊंगा बिकॉज डीप में अगर आपको समझना होगा तो एक पूरा सेशन लगेगा। फ्रेंड्स, jewelfina.com जो है ये हमारा एक वेब स्पेस है जिसके अंदर हम लोग आपको 2-3 टाइप से हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके पास कस्टमर के पास क्रेडिट कार्ड है तो हम उनको क्रेडिट कार्ड ईएमआई दे सकते हैं। अगर वो आपकी रिटेल स्टोर में आकर लाख रुपए की ज्वेलरी परचेस करता है और अपने क्रेडिट कार्ड से परचेस करता है तो उसको विद इन 45 डेज लाख रुपया भरना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आप ये क्रेडिट कार्ड स्वाइप जो है ये हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से करेंगे तो उसके अंदर उसके अंदर उसको ऑप्शन आएगा कि ये लाख रुपया जो है उनको कितने महीनों में डिवाइड करना है। तो जैसे कस्टमर आया, आप उनको पूछा भाई अगर आपको इसको ईएमआई पे करना है तो आपको 12% इंटरेस्ट लगेगा, तो 1,12,000 रुपया डिवाइडेड बाई 12, 12 महीना या 18 महीना जो भी वो डिसाइड करता है, तो उसके मोबाइल के ऊपर ऑलरेडी उसकी बैंक से ओटीपी आएगा। उस ओटीपी के अंदर लिखा जाएगा कि भाई वी अंडरस्टैंड दैट यू वांट टू बाय द ज्वेलरी, और आपने 1,12,000 का परचेस किया है, आपको इसको कितने महीने की ईएमआई में कन्वर्ट करना है। तो अगर वो 12 महीना क्लिक करता है तो हर महीने उसको 11,000 रुपया भरना आएगा, राइट। तो उसने जैसे 11 महीना सिलेक्ट किया, इस बिल साइकिल के अंदर उसको खाली 11,000 रुपए का ही बिल आएगा। तो 11,000 रुपए का बिल साइकिल के अंदर वो एक साल में पूरा पेमेंट जो है वो कर सकता है। I think it's a long discussion on the EMI. If our tablers will agree, we can have another session on this, because we are already 1 hour 15 minutes now. Any other specific question if anyone wants to ask on the insurance subject about lockdown, we will proceed with that for another 15 minutes. After that we will finish. Very much sir, I'll just take 1 more minute for this EMI thing. फ्रेंड्स, अब जब लॉकडाउन का टाइम है और आपका जो स्टाफ है फ्री बैठा है, तो इफ यू विश, और जब भी आप हमको टाइम देंगे हम ईएमआई भी बताएंगे आपको, ताकि आप अभी से लॉकडाउन के बाद की तैयारी सेल्स की चालू कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर्स को मिलकर अगर उनको कुछ ईएमआई का रिक्वायरमेंट है तो उनके डॉक्यूमेंट लेकर हमसे लोन पहले से अप्रूव करा सकते हैं। यस, सो नाउ वी विल अगेन I think this will Yeah, so if there is some last question. I think this EMI subject will be very helpful to everyone, because अभी जो situation है सब liquidity crunch आ जाएगी सबके पास में, and if any of the jeweler offer this type of EMI facility, then I think it will definitely help everyone. Yes. We can have this session later on, Bhavesh. Of course, sir. Now the session is important is only on the lockdown process and the things. If there is any more question from anyone? Yes, please.
Someone has written, is there any jewelers block policy? What about non-burglar proof safe? अगर किसी के पास non-burglar proof safe है तो उस पे भी कोई block policy है? सर ब्लॉक पॉलिसी है, उसके अंदर आपको एक सर्वे कराकर आपका जो इंश्योरेंस कंपनी को एक सर्वे कराकर आपका सेफ का फोटोज और सेफ को सर्वे कराकर आप देना चाहिए, ताकि टुमारो देयर इज अ लॉस देयर इज नो प्रॉब्लम। और इंश्योरेंस कंपनी आपसे कुछ लोडिंग चार्ज करेगी और लोडिंग के बेसिस के ऊपर वो आपका रिस्क एक्सेप्ट करेगी। तो ये स्पेशल अप्रूवल में जाएगा, आपको आपके प्रपोजल फॉर्म में डिक्लेयर करना है कि मेरे पास स्टैंडर्ड सेफ नहीं है, फिर इंश्योरेंस कंपनी केस टू केस डिसाइड करेगी। हाँ जी। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर किसी की सीसीटीवी लाइव अगर वो नहीं देख पाता है घर से बैठ के अपने शोरूम को या अपने मतलब लॉकर को, तो उसमें कोई प्रोविजन थोड़ी है कि उसको जाके शोरूम जाके चेक करना है या देखना है? इज देयर एनी नेसेसिटी? नहीं, इट इज नॉट नेसेसिटी, बट देखिए एज अ इट इज नॉट नेसेसरी और इट इज नॉट इवन मतलब इस प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसा भी नहीं बोल सकता कि आपको जाके करना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे, मैंने एक अपना आपको भी विकास जी, आपको मैंने एक भेजा था एक रिक्वेस्ट लेटर। आप पुलिस को अगर लेटर लिखकर कह सके and if they permit you and you can go to your store, open your store and check it, it will be very good। अब बहुत सारे ज्वेलर्स है, हमारे क्लाइंट है, जिन्होंने पुलिस परमिशन से स्टॉक शोरूम खोला और खोलकर शोरूम चेक किया कि सब कुछ ठीक है। तो इट इज नॉट कंपलसरी, बट इफ इट इज पॉसिबल यू शुड डू इट। बहुत सारे ज्वेलर है जिनका घर और ऑफिस बाजू बाजू में है, तो वो एवरी ऑल्टरनेट थर्ड डे जाकर एक बार खाली थोड़ा चेक करके आते हैं। यस, बट इट इज नॉट कंपलसरी। यस। और अभी इसी सिचुएशन में सपोज करिए सिक्योरिटी स्टाफ लोगों के नहीं आ रहे हैं या फिर तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सर अगर आपका सिक्योरिटी नहीं आ रहा है और अगर आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐसा कोई क्लॉज है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को एक मेल डालकर यू नो इट इज बेटर दैट आप इंश्योरेंस कंपनी को एक मेल डालकर बता दे और कि भाई मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड है वो अभी नहीं है, वो चला गया या व्हाटएवर, बट यू शुड इन्फॉर्म टू योर इंश्योरेंस कंपनी। That just because of the COVID-19, the people are not traveling and he is also not able to come for the duty. इस टाइप का एक मेल डालने से शायद वो हेल्पफुल रहेगा, राइट? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर वो अपने गांव चला गया है तो बात अलग है। ड्यू टू कोविड-19 इफ इज नॉट ट्रेवलिंग कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। क्यों मालूम है? जो सिक्योरिटी सिस्टम्स है या सिक्योरिटी गार्ड्स है, ये एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, उनके पास आईडी कार्ड होता है, तो वो अपने आईडी कार्ड से ट्रेवल कर सकते हैं। और आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा कि जहां पर आपका शोरूम है उधर ही कहीं पे उनको रुकने ठहरने का कुछ बंदोबस्त करा के देना पड़ेगा, यू नो। तो इफ इट इज पॉसिबल आप उनको बुलाकर कोई रहने देने की आप व्यवस्था कराएं और उनको सिक्योरिटी नहीं, अगर नहीं इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है भावेश कि अभी क्या है, लोगों को ऐसा नहीं है कि वो ट्रैवल करना ही नहीं चाहते कि भैया मैं कैसे आऊं। बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड है, उनके पास कोई ट्रैवल का कोई स्कूटर बाइक या कुछ सुविधा नहीं, वो बसेस में आते थे या वो ट्रेन में आते थे। तो अभी उनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि वो आके स्टोर पे या तो उनको 24 आवर्स वहाँ सर्विस दी जाए तो बात अलग है। अगर किसी के डे एंड नाइट दोनों शिफ्ट के स्टाफ थे तो वो डे वाला आ रहा है, नाइट वाला नहीं आ रहा है, तो उस प्रोविजन में क्या होना चाहिए? सर देखिए, मैं आपको बताऊंगा, हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिन्होंने अपने वॉचमैन को रहने का और सब चीज का किया है वहां पर ही सुविधा, प्लस थोड़ा सा जो भी किचन है या फूड का भी प्रोविजन किया है। और आपको खुद को रास्ता ढूंढना पड़ेगा मैं क्या करूं जिससे कि मेरा जो कारीगर है, मेरा जो वॉचमैन है, वो ड्यूटी पे आ सके। और अगर वो नहीं आ सकता है, और क्या आप कोई प्राइवेट दूसरा वॉचमैन रख सकते हो, तो वो आपको देखना चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट कंपलसरी, बट राइट नाउ मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरी खुद की ज्वेलरी स्टोर रूम है, मेरी जिंदगी भर की जो जमा पूंजी है वो उस दुकान के अंदर पड़ी है, राइट। तो आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। अगर कोई मेरे को खुद को गाड़ी देकर भेजना पड़े या मेरे को पुलिस से बात करके उसके लिए एक स्पेसिफिक कार्ड बनाकर उसको बुलाना पड़े, तो आई विल गो टू एनी एक्सटेंट टू मेक श्योर कि कोई मेरी दुकान के यहाँ पर रहे और 24 घंटा मेरी दुकान को यू नो मॉनिटर करे,
या तो इट इज नॉट कंपलसरी बट इट इज एडवाइजेबल कि आप कुछ भी करके आपके वॉचमैन को या सिक्योरिटी गार्ड को लाई। आप देखिए जितने भी एटीएम है पूरी इंडिया में, जितने भी एटीएम है, हर एटीएम के ऊपर वॉचमैन दिखेगा आपको। तो जो एटीएम का वॉचमैन है अगर वो नहीं आ सकता तो आपको एजेंसी से बात करनी पड़ेगी, किसी और रिप्लेसमेंट को लाना पड़ेगा। हाँ जी। तो आई थिंक वी हैव टेकन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो ओवर टू विनय जी। Bhavish bhai, thank you so much for the informative session. We will be sharing your contact details. Me and Vikas will be sharing your contact details on the group for any further questions. Sure. Thank you so much. I'll share the details with you all also. You can share it in your group or whatever, right? And you can share my mobile number. So if anybody wants to speak to me, they can directly call me and I'll be more than happy to help you all and you round tablers. And I've heard a lot about your group. Wish you all the very best. And thank you so much for inviting me. Thank you.